So guys, today continuing the session which we finished last class, whereby we used to learn under Forex the different kinds of exposure. The sum which we are taking up today is an exam sum, whereby here again will be repeating the concepts which we discussed earlier, that is transaction exposure and economic exposure. Let me make you understand again a flashback to the same, and then we'll move on with the sum. Now, transaction exposure was the exposure in relation to the date of entering into transaction and the date of executing it. मतलब ये दो डेट्स के बीच में जो भी फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, फॉरेन करेंसी चेंजेस आए, उसी का जो इम्पैक्ट है, दैट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. इफ आई कीप इट वेरी सिंपल, $1 का मैंने चॉकलेट खरीदा, सब जो यूएस से, which I don't pay the money on the day of contract, $1. So it was at that time 70 rupees. After 4 days, the payment got debited from my account, and that day the rate was 74 rupees. So finally, आप कहोगे, if I talk about foreign currency, it has costed me $1. But when you say that what is my outflow in terms of INR, it is 74 today, and it would have been 70 on the day when I purchased it. तो ये जो 4 rupees है वो क्या है, आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है. Second was your economic exposure, which we discussed here, whereby due to the changes in pricing, the impact, if it has been, the benefit has been transferred to the customer. In that case, due to change in prices, there will be a change in demand. This is we call as price elasticity. तो जहां जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होता है, वहां पे हम मेजर कर सकते हैं कि विद एवरी 1% चेंज इन प्राइस, what can be the maximum change in demand. Let's see this sum. This sum will be your overall exhaustiveness covered, and the last sum of this concept of operating and transactions exposures. Let's check it out. Mrs. Omega Electronics exports air conditioners to Germany by importing all components from Singapore. The company export कर रही है air conditioners to Germany and they are importing from Singapore. तो import में भी foreign currency risk है और export में भी होगा. The company is exporting 2,400 units at a price of euro 500 per unit. तो ओवरऑल एक्सपोर्ट की यूनिट्स वैल्यू 2,400 है और प्राइस 500 रुपया पर यूनिट. द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स इज $800, विच डॉलर, सिंगापुर डॉलर 800 पर यूनिट. मतलब बहुत क्लियर है, कंपोनेंट कॉस्ट आंट $800 सिंगापुर डॉलर्स पर यूनिट, एंड वही चीज हम बेचते हैं यूरोज में एट 500 यूरोज. But the fixed cost and variable cost in INR to the Omega will be 1,000 rupees and 1,500 rupees respectively per unit. The cash flows in foreign currencies are due in 6 months. ठीक है. अब आपको टाइम स्लॉट दिया है 6 months का. Moving further, the current exchange rate are as follows. 1 euro is 51.5 rupees or 55 rupees. Guys, what is the quoted currency? Euro. What will we do with euros? So we are exporting our AC in euros, so we will be selling euro. So when we sell euro, I hope everyone will be convinced, हम जो करेंसी LHS में है उसे हम बेच रहे हैं, तो रेट एप्लीकेबल विल बी 51.5. नंबर 2, ये जो सिंगापुर डॉलर्स का कोट अवेलेबल है वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वहां से, तो रेट एप्लीकेबल विल बी परचेज रेट, दैट इज 27.25. that is your swap points का base given to you. 27.25 will be the rate. Let's reconfirm the rates guys. आप लोग confirm कर लेना और लिख लेना. After 6 months, the exchange rates turn out to be as follows. तो exchange rate के rates after 6 months, ये 51.5 था, ये हो गया 52. Is it favorable? Definitely sir. We are an exporter, will be receiving 52 rupees per euro, whereby we used to receive 51.50 per euro.
ठीक है सर, 27.25 के रेट पे पड़ रहा था मुझे SGD पे, अब कितने पड़ रहा है 27.75, भारी पड़ेगा, परचेज करना है। ठीक है, इतना डेटा आपको परचेज रेट पिक करना 27.75, 52.00, यहाँ पे 51.10 एंड 27.25 रेट्स को लिख लेना साइड पे, जो रेट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। मेरे हिसाब से आप करंट एक्सचेंज रेट पे जो रेट सिलेक्ट कर रहे हैं वो है 51.5 फॉर यूरो सेलिंग एंड 27.25 फॉर डॉलर परचेजिंग। 6 महीने के बाद वो रेट हो रहा है 52 जब एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है, और डॉलर्स का हो रहा है 27.75 फॉर परचेजिंग। क्वेश्चन 1, you are required to calculate the loss or gain due to transaction exposure. Here we are computing profit or loss due to transaction exposure of how many months? 6 months. क्या करना है? Profit as per current exchange and profit as per after 6 month exchange rate. So 51.250 and 51.25 under old one, 52 and 27% under new one. अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके अपना आंसर खुद देखने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद जस्ट चेक इट आउट कि आपका आंसर क्रैक हो रहा है या नहीं. लेट्स चेक इट आउट. प्लीज स्टॉप इट हियर एंड ट्राई टू डू ऑन योर ओन सेल्फ. लेट्स सी द आंसर. द डेटा सेज 2400 यूनिट्स बेचना है, सिमिलरली 2400 यूनिट्स खरीदना है. बेचना 500 यूरोस पे है और खरीदना SGD 800 पे है. फिक्स कॉस्ट 1000 रुपया पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट 1500 रुपया पर यूनिट है. फिर स्पॉट रेट जो दिए है वो है 51.5, 51.55 एंड 27.20 एंड 27.25. तो आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा? 27, 51.50 सेलिंग रेट एप्लीकेबल एंड फॉर डॉलर्स बाइंग रेट एप्लीकेबल. लेट्स सी द प्रॉफिट हियर. 500 euros per unit into 51.50 minus $800 for import into 27.25. This will convert my import export into INR plus 1000 rupees and plus 1. This is your INR cost, fixed cost and variable cost. ये हो गया आपका per unit profit 25,750 minus 24,300 into 2400 units, that is 34,80,000 rupees. This becomes your first step to this entire phase. यहाँ पे आपने करंट स्पॉट पे ये प्रॉफिट ढूंढा. सिमिलरली स्पॉट रेट्स आफ्टर 6 मंथ्स जो थे उसमें मैं 52 यूज करूंगा और 27.75 यूज करूंगा. डेटा सिर्फ चेंज होगा, मेथड सेम रहेगी. लेट्स चेक इट आउट द प्रॉफिट. क्वांटिटी इनटू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी. तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 31.20 इन द सेम वे. तो 34,80,000 minus 31,20,000 will be termed as what? Your transaction exposure. This is the time when we finish off your first part of the question. You can pause the video, get the data correct and then move forward. This is your first question जो आपने finish कर दिया. ठीक है? This was an 8 mark question. Let's move forward for the balance marks. Check it out. आपने अभी तक होल्ड करके आगे का पार्ट खत्म कर दिया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 2. Based on the following additional information, calculate the loss or gain due to transaction and operating exposure if the contracted price of air conditioner is rupees 25,000. Please think it very well what's happening here. ये कहता है कि there is some new information available which says that instead of selling in terms of 500 euros, company is intending to sell at rupees 25,000 flat. Rupees 25,000, that is what they want to do now. Rupees 25,000 flat. Now because of this rupees 25,000 flat, the exchange rates, the current exchange rate changes to, मतलब इन्होंने बोला कि जो आपके पहले के करंट रेट्स थे 6 मंथ्स बाद के, नहीं करंट 0 डे के 51.55 and this, it has been changed to the given data available. पहली बात मेरी सुनना कि आपका कोडिंग INR में हुआ है. अब जर्मनी में जब इंडियन कंपनी का कोई एसी खरीदेगा उसे तो INR 25,000 का कोड मिलेगा क्योंकि आपने कोटिंग चेंज कर दी फ्रॉम यूरोस टू INR. Now how much does he have INR with him? No, he needs to spend his euros to
get INR 25,000 और डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन एक्सचेंज रेट्स उसके ट्रांजेक्शन में इफेक्ट होगा. Does he have to pay more euros to buy rupees 25,000? Does he have to buy? Sorry, I repeat it again. He has to sell euros to buy rupees. Now selling euros and buying rupees. If rupees become stronger, he has to spend more of euros to buy 25,000 rupees. And if rupees becomes weak, he has to spend less of euros to buy 25,000 rupees. तो यही चीज हम समझते हैं मैथमेटिकली भी कैसे हो रही है. आगे जाते हैं. इन्होंने डिमांड इलास्टिसिटी 1.5 दे दी है. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज रुपीज 25,000. ये आपका सेकंड सिचुएशन है. मैं एक और चीज आपको दिखाना रह गया मुझसे. Based on the following information, calculate loss or gain due to transaction exposure and operating exposure if the contracted price is rupees 25,000. It means that वापस वो आपको पूछ रहा है transaction and operating. Transaction already पूछा था but with old data. He's asking you again with new data and then he's asking you also operating exposure if the price is not euro 500 is rupees 25,000. Let's move down now. अब आप देखोगे कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में प्रॉफिटेबिलिटी एज पर द न्यू एक्सचेंज रेट्स. अब एक चीज क्लियर हो गई कि मेरा ये प्राइस तो 25,000 रुपीज फिक्स्ड है, ये मुझे मिलने वाला है. तो मेरे को फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता एज एन एक्सपोर्टर कि फॉरेन करेंसी रेट क्या चल रहा है. मुझे फर्क सिर्फ ये है कि भाई मुझे हाथ में 25,000 चाहिए. फर्क तो उस कस्टमर को पड़ेगा, उसको कितना यूरोस बेचना पड़ेगा टू बाय 25,000 रुपीज टू बी पेएबल टू मी. सामने इन्होंने आपको नया रेट दिया होगा किसका, एसजीडी का. देखते हैं क्या दिया है. ये रहा 27.15 इज द न्यू रेट गिवन बाइंग रेट. लेट्स चेक इट आउट. अब यहाँ पे देखोगे तो 800 इंटू 27.15 ये हो गया आपका रेट नया, प्लस 1000 प्लस 1500 माइनस 25,000. दिस इज INR, प्योरली INR क्योंकि आप कोड INR में कर रहे हो. ये आया आपका आंसर 18,72,000. ये आपका प्रॉफिट है एज पर द न्यू एक्सचेंज रेट, जहाँ पे सेल्स का प्राइस यूरोज में नहीं है INR में है. तो 25,000 रुपीज माइनस 800 SGD इंटू 27.15 दैट इज रुपीज अगेन, plus 1,000 rupees plus 1,500 rupees. This is your cost. I hope that is clear. Profits after exchange rate, after change in exchange rates at the end of 6 months. अब ये कहता है 6 मंथ के बाद की पोजीशन तो ये थी कि आपका ये परचेज जो 27.15 है ना, वो क्या हो गया है 27.75. तो फटका जो लगा वो कहाँ लगा कि आपका 800 सिंगापुर डॉलर्स खरीदने का पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 60 पैसे से बढ़ गया. दैट इज द मेन कॉस्ट. बाकी सब कॉस्ट तो सेम है. और आपका रिसीट जो है वो 25,000 रुपीज से आ रहा है. तो अभी वो रुपीज तो रुपीज ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. आपके दिमाग में कुछ डाउट आता हो तो ये समझना कि अब INR में कोट करने की वजह से इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टर इट इज द इम्पोर्टर हु बेयर्स द रिस्क, क्योंकि अब उसे फ्लक्चुएशन का फटका लगेगा. मैंने तो मेरे करेंसी में कोट कर दिया, बात खत्म. जैसे आप इंपोर्ट करो US डॉलर्स से, तो US डॉलर्स खरीदने का फ्लक्चुएशन हमारे ऊपर होता है. उसको तो फिक्स हो गया कि मुझे डॉलर्स चाहिए भाई, डॉलर्स दे दो. मतलब जो करेंसी में कोटेशन होगा वो करेंसी वाला बंदा सेफ होता है. अगर मैंने मेरी करेंसी होम करेंसी में कोट किया तो मैं सेफ, और अगर US का बंदा जब मुझे एक्सपोर्ट करता है और वो US करेंसी में ही कोट करता है तो वो सेफ. बट जब वो US करेंसी में कोट करता है तो मुझे रिस्क बेयर करना पड़ता है ट्रांजैक्शन का, और जब मैं INR में कोट करता हूं तो उसे रिस्क बेयर करना पड़ता है ट्रांजैक्शन का. दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेल. आगे ये था प्रॉफिट एज पर एक्सचेंज रेट्स एट द स्टार्ट, द न्यू रिवाइज्ड वन, और ये था प्रॉफिट आफ्टर 6 मंथ्स.
तो फाइनली देयर इज अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर ऑफ अमाउंटिंग टू हाउ मच गाइस, 11,52,000 रुपीज. दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. अच्छा खासा फटका लग गया. इसका सिर्फ एक ही रीजन है, 800 यूनिट्स इंटू 60 पैसा, राइट. इट्स लाइक 480 रुपीज पर यूनिट. ऐसे 2400 यूनिट का जो लॉस है ना, दैट इज द अमाउंट विच इज अ फैक्टर हियर. अब ये तो हो गया ट्रांजैक्शन एक्सपोजर टू एवरी वन ऑफ यू. अगेन आप यहाँ पे वीडियो को होल्ड करोगे, आप इस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के डेटा को पूरा लिखोगे खुद से, एंड यू रीचेक योर आंसर्स हियर. आई विल मूव फॉरवर्ड. अब आता है हमारा सबसे रेलेवेंट पार्ट, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपोजर. अब ये कहता है कि करंट प्राइस जो अब उन्होंने हमें दिए थे वो थे 51.50 बेचने का प्राइस. आपको मैं चेक करवा देता हूं एक बार. ये रहा. $51.5. और उसके बाद जो रिवाइज्ड उन्होंने बोला करंट प्राइस जो होगा वो क्या बोला, 51.75. उससे क्या होगा देखो ध्यान से. हाँ, जैसे ही 25,000 रुपीज खरीदने के लिए 51.5 के रेट से सामने वाले इंपोर्टर को 485.4 यूरोज यूज करने पड़ेंगे. और जैसे ही रेट हो गया 51.75, मतलब रुपीज डेप्रिशिएट हो गया, नाउ यू आर गेटिंग 51.75 रुपीज पर यूरो. तो वो डॉलर मार्केट में जो भाव था वो क्या हो गया यूरो में, 483.09. मतलब 485.44 कितना हो गया, 483.09. ये कैसे हो रहा है सर? मेरे को चाहिए 25,000, मेरे एक्सपोर्ट, मेरा प्राइसिंग 25,000 है. वो बंदे को मार्केट से क्या उठाना पड़ेगा, रुपीज, और क्या बेचना पड़ेगा, यूरो. तो एक यूरो बेच के उसे 51.50 मिला. तो 25,000 रुपीज खरीदने के लिए कितना यूरो लगेगा, तो वो आया 485.44. एलिमेंट नंबर 2 बोला कि चेंजेस ऑफ प्राइसेस के बाद इट टेक्स हिम 1 यूरो टू गेट 51.75 rupees. Now if he needs rupees 25,000, he requires 483.09 euros. Now आप देखोगे कि कस्टमर को बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया है आपने, आपका प्राइस 20,000 रखा था दोनों केसेस में, तो फाइनली देयर इज अ चेंज इन प्राइस फ्रॉम 485.44 to 483.09. This comes to a change in value in absolute terms to 2.35. You can see here. And in terms of percentage, when you do what, 485.44 minus 43.09 divided by 485.44, you are getting 0.48%. Now this is euros, huh, guys. It's a small error here. It's a euro. ये euros है, ये क्या नहीं है, ये dollars नहीं, euros है. ठीक है. Now price demand elasticity कितना दिया, 1.5. तो कैन आई से दैट कि जब प्राइस कम हुआ है 0.48% से, 0.48% से, तो बिकॉज ऑफ दैट with a price elasticity of demand of 1.5, the increase will be shooting up the demand to the extent of how much, 1.5 into 48, that is 0.72%. and this 0.72% का जो increase आया है in terms of units, तो I'll be like कि 2400 में मैं 0.72% ऐड कर दूंगा. कैलसी पे यूज करो 2400 यूनिट्स प्लस 0.72%, विच विल कम टू 2417 यूनिट्स. तो फाइनली आपके यूनिट्स जो है जो आप बेचोगे वो 2400 से बढ़ के 2417 हो गए हैं. ये डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि आपका रूपी वीक हुआ, यूरो की प्राइसिंग कम हुई, एंड दिस हाउ योर डिमांड इंक्रीजेस. आगे अब प्रॉफिट की बात करूं तो 2417 यूनिट्स बेचेंगे हम लोग क्योंकि डिमांड चेंज हो गई है हमारी. अब 25,000 इसमें रुपीज, जो ट्रांजेक्शन सेम रहेगा. अब 800 इंटू 0.27.75, दैट इज माई प्राइस टू बी पेड एट द एंड, प्लस 1000 प्लस 1500, सब कुछ चीजें सेम है. यहाँ पे चेंज क्या होगा एज कम्पेयर टू योर 6 months वैल्यूज प्राइस, चेंज होगा यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया 2417 यूनिट्स के बेसिस पे. अब ये 27.75 के बेसिस पे फाइनली व्हेन यू अराइव एट अ प्रॉफिट, दिस इज 6 months बाद का डेटा, राइट. फाइनली 6 months में हमने इतना बेच
ओवरऑल हमने 2417 बेचा, हम 6 मंथ्स ड्यू पे, अब हमारा प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना है 7,25,100। अब हमारे ओरिजिनल ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एट द स्टार्ट जो था इन पॉइंट नंबर 2, ये वाला 1872 जो था, वो 1872 को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, अभी वाले पार्ट से। हाउ मच 7,25,100। अग्रीड। वहां पे यूनिट्स कितने लिए गए हमारे, वहां पे 2400 यूनिट्स है, लेकिन हम वो हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स था, और हमारे प्राइसिंग की वजह से जो चेंजेस आए, बिकॉज ऑफ दैट हमारे यूनिट्स जो बढ़े हैं 6 मंथ ड्यूरेशन के अंदर, दैट इज रिजल्टिंग टू 7,25,100। तो अभी आप देखोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो 1870 होने वाला था, उसके बदले भले ही आपका यूनिट्स बढ़ भी गया है, फिर भी आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 7,25,100, which results to a loss of how much 11,46,900. Now you may get confused here to an extent. I'll help you out to solve this. Have patience. Now do you agree original profits were 1872, right? Original जहाँ पे हमने 2400 यूनिट्स लिए हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल रेट्स लिए थे, नॉट 6 मंथ्स लेटर के रेट्स। फिर हमने कहा कि डिक्लाइन इन एक्सपोजर, विच एक्सपोजर, ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, वो कितना था, इफ यू रिमेंबर, ये रहा आपका विदाउट ऑपरेटिंग कंसिडरेशन, ये आपका ट्रांजेक्शन एक्सपोजर था 11,52,000 का। ये कैसे आया, सेम वे पे 24 यूनिट्स को कॉन्ट्रैक्चुअल रेट से और लास्ट 6 मंथ्स लेटर के रेट से कंपेयर करके प्रॉफिट ढूंढा, गैप है 1152, तो इतने से आपका प्रॉफिट कम हो गया। फिर मैं कहूंगा कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर का इंपैक्ट क्या आया, सर 1700 यूनिट बढ़ा, 70 यूनिट बढ़ा, आई एम सॉरी 70 यूनिट बढ़ा, और इफ यू ऑब्जर्व ईयर 25,000 का रेवेन्यू है और 24,700 का कॉस्ट है, तो 300 रुपया पर यूनिट क्या हुआ, 300 रुपया पर यूनिट आपका प्रॉफिट बढ़ा, और 17 यूनिट्स के लिए ये बात है, तो वो एग्जैक्टली कितना होता है 5,100। तो इससे प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। तो 1872 आपका ओरिजिनल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, उसमें लगा फटका ट्रांजैक्शन का कितने का 11,52,000 का। उसके बाद का जो रीजन है, that is we are talking about operating exposure का part, directly jumping to that amounts to how much rupees 5,100। अब आप चेक करोगे तो इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि तो प्रॉफिट है, ऐड हुआ, ये कॉस्ट था, ये माइनस होगा, तो इसके बाद जो फिगर है वो क्या आया 725,100। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर का जो फंडामेंटल्स है कि ड्यू टू दैट फाइनली कितना आया, तो 11,46,900 आया, 11,46,900। तो कैन आई से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस बिकॉज ऑफ 7,25,100, दिस इज बिकॉज ऑफ 7,25,100। वो क्या था, आपका प्रॉफिटेबिलिटी था एज पर योर रिवाइज टर्म्स, मतलब जब ये आपने 2,417 यूनिट्स बेचा, तो आपका प्रॉफिट क्या है एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, वो आया 7,25,100। वही फिगर यहाँ पे आपको आ रहा है 7,25,100। मतलब मैंने क्या किया, आपके ट्रांजैक्शन के ओरिजिनल प्रॉफिट को एडजस्ट किया in terms of two stuffs. One is transaction exposure and your genuinely additional operating exposure. That is because of additional units sold. That amounts to how much, guys? Rupees 5,100. और यहाँ पे आप देखोगे तो 1152 और 5,100, ये दोनों का जो नेट इफेक्ट है ना गाइस, ये कितना होगा, ये रहा आपका फिगर 11,46,900। मतलब डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, मतलब वो कवर दोनों कर लेगा, तो वो नेट इफेक्ट दे रहा है फिर कि मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर वाज रिजल्टिंग टू मोर ऑफ लेस ऑफ प्रॉफिट, बट ड्यू टू माय ऑपरेटिंग एक्सपोजर इट इज कमिंग समथिंग मोर। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपोजर में हम करते क्या है, हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट तो आएगा ही, इट्स लाइक ऑल्सो कवरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड सप्लाई। That is what you understand here. And here what I have done, I have just added the additional impact just due to increase in sales here. So if you just recollect this entire stuff once more time,
आई वॉज जस्ट कन्फर्मिंग रीअसेसिंग द सेम स्टफ. ध्यान से समझना इस चीज को वापस एक बार. सर एक बार आप रिकलेक्ट करो जो मैं बोल रहा हूँ. इनिशियली जब हमने माल बेचा तब हमने दो चीजें देखी कि हमारा प्राइस ये 20,000 फिक्स है. दूसरा हमारा इंपोर्ट पे 27.15 के रेट से हमें माल मिल रहा था. क्या? एसजीडी के वैल्यू पे. ठीक है, ये चीज क्लियर थी. बिकॉज ऑफ विच हमारा प्रॉफिट 18,72,000 था. अब हमारे पास दो रिस्क थे. एक था ट्रांजैक्शन का रिस्क, दूसरा था हमारा ऑपरेशन का रिस्क. ट्रांजैक्शन रिस्क ये था कि या तो हमारे प्राइसिंग्स में फटका लगे. अब आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रांजैक्शन रिस्क में सिर्फ एक ही चीज बची है. एक्सपोर्ट आईएनआर में हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा था 27.15 पे, वो क्या हो गया 27.75. तो यही चीज का लगा बड़ा बॉम्ब, फटका लग गया हमें यहाँ पे कि 27.15 के बजाय 27.75 के रेट से पे करना पड़ा. ये तो हो गई बात कौन सी? ये तो बात हो गई हमारी ट्रांजैक्शन रिस्क के एलिमेंट की, जिस विच रिजल्टेड टू अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट ऑफ 11,52,000. ठीक है. नाउ बिकॉज द रिस्क फॉर सेल्स वॉज टू द इंपोर्टर, there was a price fluctuation in the price of AC in terms of euros. Let's check it out. The price was for 85.44 as per the current one with 51.5 ka spot rate. When the spot rate changed to 51.75, the price jumped to reduced to 483.909. So customer, that the importer would have been spending 483.09 euros instead of 485. Now यहाँ पे हमने एक observation किया कि this will lead to an operating exposure, but this exposure for this time is beneficial to us because of which there was a change in pricing to 0.48% and with a demand of 1.5 price elasticity demand, it suited up my revenue by 0.72%. तो मैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे दो फटके लगे, एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपोजर. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपोजर कवर्ड अप नाउ, फाइनली व्हाट इज माय प्रॉफिटेबिलिटी कमिंग अप टू 720/100. व्हाट वाज माय ओरिजिनल प्रॉफिटेबिलिटी 1872. So how much I am going down for 1146,900. And what is the reason for this 1146,900? 1152 due to transaction exposure negative and 5,100 due to operating exposure positive. I hope you are clear with this. Anyone having a doubt after watching this, writing this down, you can immediately WhatsApp me and I'll immediately call you back. There's one more session which I want to take it today through recorded session only. I just tried this because it becomes somewhat difficult कि Zoom पे record करके भेजो. It becomes difficult. I thought let's record it this way and send it. I hope you like it. Confirm it and you message me guys if I'm doing this for the first time with you all, whether you understand it better or not. Let me know.